السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی، ایپیسوڈ نمبر 14۔ تمہارے کپڑے تو خشک ہیں، وہ شرارت سے بولی اور میں بکھلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ جلد بازی میں جھوٹ بھی ایسا بولا تھا جو چل نہ سکے، چنانچہ میں کھیسانے انداز میں ہنس پڑا۔ خیر مجھے کیا، آؤ چاچا کے پاس چلو، وہی تمہاری مدد کرے گا، اس نے کہا اور میں اس بات کو غنیمت جان کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ عورت کافی خوبصورت تھی، اگر تعلیم یافتہ اور اچھے طبقے کی ہوتی تو بے مثال تھی۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ایک جھونپڑے کے سامنے پہنچ گیا۔ جھونپڑے کے سامنے ایک چھپڑ پڑا ہوا تھا جس کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور ایک قوی ہیکل مچھیرا چارپائی پر دراد حکا گڑگڑا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے حکے کی نال منہ سے نکالی۔ یہ کوئی مصیبت زدہ ہے، چاچا بچوں سے باتیں کر رہا تھا، آؤ بیٹھو، بوڑھے لیکن تنومند مچھیرے نے مجھے چارپائی پر جگہ دیتے ہوئے کہا اور میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں رانی پور سے آیا ہوں، میں نے دوسرا جھوٹ بولا اور عورت بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ ادھر کیسے آ نکلے؟ یہ تو مچھیروں کی بستی ہے۔ وہ چاچا بس دوستوں نے مذاق کیا ہے، بڑے ذلیل ہیں میرے دوست، مجھے کشتی سے لے کر یہاں آئے اور پھر ساحل پر اتار کر بولے کہ میں یہاں کی سیر کروں۔ وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ گئے، میں نے کہا اور عورت کی نظروں سے نظریں چرا لیں۔ وہ زہر لب مسکرا رہی تھی۔ اور ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں جی، مسلمان ہوں، خدا کے فضل و کرم سے، میں نے جلدی سے کہا اور بوڑھا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ عورت کی آنکھوں میں بھی حیرانی نظر آئی اور پھر بوڑھے نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا، لیکن تمہارا لباس تو ہندوؤں جیسا ہے۔ یہ بھی انہی کمبخت دوستوں کی شرارت ہے، اور ان میں سے میرا ایک دوست ہندو بھی تھا، اس نے زبردستی اپنا لباس مجھے پہنا دیا۔ ویسے میں مسلمان ہوں، میں نے بوڑھے کو کلمہ پڑھ کر سنایا تو اسے فوراً یقین آ گیا۔ عجیب دوست تھے تمہارے، کہیں انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی تو نہیں کی؟ نہیں، صرف شرارت کی ہے، میں اسے واپس جا کر انہیں مزہ چکھاؤں گا، میں نے کہا اور بوڑھا ہنسنے لگا۔ پھر بولا، چائے پیو گے؟ چائے؟ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بوڑھے نے عورت سے کہا، شریفہ چائے بنا دو، اور عورت موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی اندر جھونپڑی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میلے کچیلے پیالوں میں چائے لا کر ہمیں دونوں کو دی اور میں چائے پینے لگا۔ اب تم کیا چاہتے ہو بیٹے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ مجھے رانی پور تک پہنچوا دیں چاچا، بڑا شکر گزار ہوں گا۔ آج یہیں رہو بیٹے، شبیر مچھلیاں لے کر رانی پور گیا ہوا ہے، ہم لوگ رات کو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور صبح انہیں شہر میں بیچنے چلے جاتے ہیں۔ کل جب شبیر مچھلیاں لے کر جائے گا تو تم اس کے ساتھ چلے جانا، بوڑھے نے کہا اور میں مجبور ہو گیا۔ ان لوگوں کو اور کسی طرح مجبور بھی تو نہیں کیا کر سکتا تھا۔ بہرحال بوڑھے کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کچھ اور لوگ بھی آ کر بوڑھے کے پاس بیٹھ گئے اور بوڑھا ہنس ہنس کر انہیں میرے بارے میں بتانے لگا۔ سیدھے سادے لوگ تھے اور وہ میری فردی دوستوں کی شرارت پر ہنسنے لگے اور میں بور بیٹھا رہا۔ عورت کبھی کبھی آ کر مجھے دیکھ لیتی اور وہ بہت شریر معلوم ہوتی تھی، لیکن صرف شریر۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے حیائی نہیں دیکھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر شام ہو گئی۔ سورج چھپنے سے پہلے بوڑھے کا بیٹا اور شریفہ کا شوہر آ گیا۔ لمبا تڑنگا، تیز اور چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا اور اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ نہ جانے کیوں میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار محسوس کیے۔ بہرحال وہ اندر چلا گیا اور کافی دیر تک باہر نہ نکلا اور میں اس بوڑھے سے بات چیت کرتا رہا۔ رات کو میں نے بوڑھے اور اس کے بیٹے کے ساتھ کھانا کھایا۔ ساگ اور مکئی کی روٹی کتنی لذیذ معلوم ہوئی، اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں کے ایک ایک ذرے سے اپنائیت ٹپک رہی تھی۔ رات کو بوڑھے نے میرے سونے کے لیے اپنے قریب ہی چارپائی بچھائی اور میں اس کے نزدیک میلے کچیلے بستر پر لیٹ گیا۔ شریفہ اور بوڑھے کا لڑکا اندر جھونپڑی میں تھے اور بہت عرصے کے بعد آرام دہ چارپائی ملی تھی۔ مجھے بہت جلد نیند آ گئی اور اس وقت راج کا نہ جانے کیا وجہ ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے بوڑھے کی آواز سنی۔ کیا ہے شبیر، کیا بات ہے؟ اندر تو آؤ چاچا، کچھ بات کرنی ہے، نوجوان نے کہا اور بوڑھا حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر دونوں اندر جھونپڑی میں چلے گئے اور نہ جانے کیوں مجھے کچھ کرید سی ہو گئی۔ میں دب پاؤں اٹھا اور ایک حصے میں پہنچ گیا جہاں سے میں ان کی اندر کی گفتگو سن سکوں۔
अंदर लालटेन रोशन थी और बूढ़ा और उसका बेटा और बहू एक जगह बैठे हुए थे। ये क्या है, क्या दिखा रहे हो मुझे? बूढ़े ने कहा। आहिस्ता बोलो चाचा, गौर से देखो, ये तस्वीर है। ऐसी तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी। रमज़ानी उखाड़ लाया था किसी दीवार से। ये तस्वीर एक खूनी की है जो जेल से निकल भागा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये इनाम है। गौर से देखो चाचा, हमारा मुकद्दर खेलने वाला है। ये वही है जो बाहर सो रहा है। क्या? बूढ़ा उछल पड़ा। हाँ चाचा, ये वही खूनी है, यकीन करो। और जब मैं इससे हाथ मिला रहा था तो मैंने इसकी शक्ल देखी थी। उस वक़्त मुझे याद ना आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है, पर मैं दिमाग लड़ाता रहा और मुझे याद आ गया कि मैंने उसकी तस्वीर कहाँ देखी। ये पर्चा मैंने ऐसे ही संदूक में बिछा लिया था और जिस वक़्त रमज़ानी ने मुझे बताया था कि मैंने उसी वक़्त खुदा से दुआ मांगी थी। अगर ये खूनी मुझे मिल गया तो मज़े आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था चाचा कि मेरी ये दुआ ऐसी पूरी हो जाएगी। मगर वो तो हमारा मेहमान है, बूढ़े ने उलझे हुए अंदाज में कहा। पर वो खूनी है चाचा। अगर पुलिस को ये भी मालूम हो जाए कि हमने उसे अपने यहाँ पनाह दी है तो वो हमें सालों घसीटेगी और उसका पुलिस के हवाले कर देना ही अच्छा है। हाँ ये तो है, मगर बेटा वो खूनी है और उसके लिबास में कोई छुरा वगैरह ना हो। अरे फिक्र मत कर चाचा, तुम्हारा बशीरा कमज़ोर नहीं है, देख लूँगा साले को। मगर तू उसे पकड़ेगा कैसे? बस सोते में मैं और तुम मिलकर हाथ पांव बांध लेंगे और सुबह को दोनों मिलकर उसे रानीपुर ले चलेंगे। जैसे तेरी मर्जी, पर शक्ल से सीधा नजर आए है बेटे। ना जाने क्यों मुझे दुख हो रहा है, बूढ़े ने कहा। तुम तो हो ही नरम दिल चाचा। क्यों शरीफा, 5,000 मिल जाएंगे तो मज़े नहीं आ जाएंगे? और उसने अपनी बीवी से पूछा, लेकिन बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे मालूम ना था कि मेरे मुल्क की हुकूमत ने मेरे लिए इनाम मुकर्रर किया है। ये मासूम लोग दौलत हासिल करने के चक्कर में थे और मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। जहां भी मेरे लिए मुसीबत पैदा हो गई, मैं कैसे रानीपुर जाऊं। मैं खामोशी से झोंपड़ी के पास से पलटकर पलंग पर आ गया। दिल सख्त परेशान था। कवि हिकल बूढ़ा और उसका बेटा बहुत तंदुरुस्त थे और वो दोनों मिलकर बाआसानी मुझे काबू में कर सकते थे। चुनाचा उनके आने से कबल ही कुछ सोच लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं फरार होने की कोशिश की तो वो शोर मचा देंगे और इस जजीरे से निकल भागना आसान नहीं। इससे कबल कि मैं कोई फैसला करता, वो दोनों बाहर निकल आए और मैं खामोश पड़ा रहा। शबीर ने करीब आकर मुझे गौर से देखा। बूढ़ा कुछ फासले से ही खड़ा था और मैंने आन की आन में एक फ़ैसला किया और पलंग से उठकर बैठ गया। वो दोनों उछलकर पीछे हट गए थे। मैं चारपाई से खड़ा हो गया और फिर मैंने दुख भरे लहजे में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मैं आप दोनों की गुफ्तगू सुन चुका हूँ। काश कि मैं आपके काम आ सकता। बेशक मैंने खून किया है, लेकिन मजबूरी की हालत में मैं जेल से भागा हुआ कैदी भी हूँ। अगर मुझे एक अहम काम ना होता तो बाखुदा मैं आप सबको अपने आप को आपके हवाले कर देता ताकि आपको 5,000 रुपये हासिल करके खुशी मिल सकती। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और मेरे दोस्त, मैं मजबूर हूँ। मैं अभी गिरफ़्तार होना नहीं चाहता। अलबत्ता तुमसे एक वादा कर सकता हूँ। मैंने दोनों की शक्ल देखी। वो सहमे हुए खड़े थे, बिल्कुल मुजरिमों की तरह। मैं वादा करता हूँ बुजुर्ग के अगर मैं इस काबिल हो गया कि आपको ये रकम मुहैया कर सकूँ तो खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि आपको ये रकम पहुँचा दूँगा। मगर तुम खूनी भी हो और अगर हमने तुम्हें निकाल दिया तो हम भी फंस जाएंगे। आप किसी से क्यों कहते हैं कि मैं यहाँ आया था? सुबह लोगों को मालूम हो जाएगा जब मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। तुम मुझे रात के अंधेरे में ले चलो। आज मछलियाँ मत पकड़ो। ये नेक काम मेरे दोस्त, ये नेक काम करो मेरे दोस्त। मुमकिन है कि तुम्हें उसका बहुत बड़ा सिला मिल जाए। मैं तुम्हें ज़रूर गिरफ़्तार करवाऊँगा। देखूँगा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। बशीर, झोंपड़े के दरवाजे से औरत की आवाज़ सुनाई दी। तू ऐसा पत्थर दिल कब से हो गया है बशीर? कुदरत ने हमें सब कुछ दे दिया है। हमें नहीं चाहिए 5,000, 10,000 और उसे छोड़ आ जा, अभी छोड़ा। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है शरीफा, लड़के ने कहना चाहा। दिमाग तेरा ख़राब हो गया है जो घर आए मेहमान को पुलिस के हवाले कर रहा है। दौलत तो आने जानी चीज़ है और इसकी ज़िंदगी बच जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जा बशीरे, से छोड़ा, वरना मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी तुझसे। औरत का लहजा बहुत मजबूत था और बशीर उसकी शक्ल देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम सबकी यही मर्जी है तो यही सही। क्यों चाचा? हाँ बेटा, छोड़ा बेचारे को। खुदा सब से खुद ही निमट लेता है और अगर इसने किसी बेगुनाह का नाहक खून किया है तो खुदा उसे नहीं छोड़ेगा और अगर यह सच्चा है तो इसकी जान बच जाएगी। जा छोड़ा, अल्लाह हमें कहीं और से दे देगा। अच्छा चाचा, आओ दोस्त,
सुबह होने से पहले तुम्हें छोड़ आऊं, वरना दूसरे लोग देख लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बशीर के साथ साहल की तरफ चल पड़ा। एक छोटी सी कश्ती में हम दोनों बैठ गए और बशीर ने अपने हाथों में पतवार संभाल लिए और फिर कश्ती लहरों पर हचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। चांद निकला हुआ था, समंदर जवान था। हम आगे बढ़ते रहे। रानीपुर मेरे अंदाजे से कहीं करीब था। 1 घंटे के सफ़र के बाद ही रानीपुर की रोशनियां नज़र आने लगी। मैंने कश्ती खेलने में बशीर की मदद करनी चाहिए तो उसने नरम लहजे में कहा, रहने दो बाबू, हम तो आदी हैं, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। मगर तुमने खून क्यों किया था और फिर जेल से कैसे भागे? सच पूछो बशीर, तो मैंने कोई खून नहीं किया, और अगर गौर किया जाए तो मैंने कई खून किए हैं। जेल से निकल भागने में मेरा कोई दखल नहीं रहा है। बस हालात मेरे लिए रास्ता बनाते रहे हैं और अब मैं मज़ीद हालात का मुंतज़िर हूँ। शायद मेरी किस्मत में बच जाना लिखा हो, वरना तुम ही मुझे पुलिस के हवाले कर देते। मुमकिन है कि मेरी आंख ना खुलती, या मुमकिन है तुम अपनी बीवी की बात ना मानते। कैसे ना मानता बाबू, शरीफा तो मेरी ज़िंदगी है। जो कुछ करता हूँ उसके लिए करता हूँ। जब वही नाखुश थी तो मुझे सारी दौलत का क्या करना? मैं खामोश हो गया। मज़ीद 1 घंटे के बाद हम एक साहल पर पहुंच गए और बशीर ने मुझे साहल पर उतारते हुए मुझसे मुसाफा किया। अच्छा बाबू, इजाज़त दे, खुदा तुझे नई ज़िंदगी दे। शुक्रिया बशीर, वैसे मुझे अपना वादा याद रहेगा। मुमकिन है कि मैं तुम्हें वो रकम दे सकूं जो तुमने मेरे लिए ठुकरा दी। अल्लाह मालिक है बाबू, वह हंसते हुए बोला। यहाँ से शहर कितनी दूर है? मैंने उससे पूछा। अरे बस 1 मील से ज़्यादा ना होगा। वो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, माहीगीरों के लिए यही साहल है, वरना मैं तुम्हें बंदरगाह पर उतारता और वहाँ से शहर बिल्कुल करीब है। बशीर ने जवाब दिया। नहीं बशीर, शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। और एक दफ़ा और उससे गर्मजोशी से मुसाफा करके चल पड़ा। चांद अपना फासला तय कर चुका था और चांदनी फीकी पड़ती जा रही थी। रोशनी होने से पहले रानीपुर के इलाके में दाखिल हो गया था। मुझे इल्म हो गया था कि पुलिस को आज तक मेरी तलाश है, इसलिए अपनी हिफाजत करना भी ज़रूरी था। मेरा लिबास अजीब था। मैं चाहता था कि किसी तरह उस लिबास से छुटकारा हासिल करूं, लेकिन अब ये काम इतना आसान नहीं था। ये सब कुछ तो आरफ के दम से था और अब तो मैं 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं हासिल कर सकता था। फिर क्या करूं? मेरे राजकुमारों जैसे लिबास से तो लोग मेरी तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। मैं परेशान घूमता रहा। शहर के बाजार सुनसान पड़े हुए थे, लेकिन आवारा कुत्ते भौंकते नज़र आते थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई कुत्ता मुझे देखकर नहीं भौंका और मैं चलता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया। लोग इधर उधर जा रहे थे और मैं उनकी नज़रें देख रहा था। मैं अंदाज़ा करना चाहता था कि उन्होंने मेरे लिबास को देखकर क्या असर लिया है। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि कोई भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। किसी ने उलझे ख़ास तौर से मुझे नहीं देखा। और जब मैं चलते चलते थक गया तो सड़क के दरमियान बने हुए एक घास के किता पर बैठ गया। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, और पहले मैं अपने पोशीदा करने का इंतज़ाम करूं या हालात को इसी तरह चलने दूं। और फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मुझे बहुत जल्द तारागढ़ पहुंच जाना चाहिए। जितनी देर लगाऊंगा उतनी ही उलझनें बढ़ेंगी, और उस ख्याल के तहत मैंने स्टेशन जाने की ठानी। एक जगह मैंने किराएगीर को रोककर पूछा, भाई साहब, स्टेशन को कौन सा रास्ता जाता है? लेकिन कोई खर दिमाग आदमी था या फिर जल्दी में था, और उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मैंने एक ठंडी सांस ली और चलता हुआ रास्ते में मैंने एक और तांगे वाले को रोककर रास्ता पूछना चाहा, लेकिन तांगे वाला जंगली था और अगर मैं खुद ही रास्ते से हटना जाता तो वह तांगा मेरे ऊपर चढ़ा देता। मेरा दिल चाहा कि तांगे वाले को रोककर 2-4 गालियां दूं, लेकिन फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया। एक चौराहे पर मैंने तख्तियाँ लगी देखी जो मुख्तलिफ सिमतों का रास्ता बताती थी, और उन्हीं में से एक तख्ती पर स्टेशन रोड भी लिखा हुआ था। चुनाचा मैं उसकी सीध में चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद स्टेशन पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक ख़ास ख्याल सुहाने रूह था। मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। टिकट कहाँ से लूँगा? बगैर टिकट ना जाने कितने मुसाफिर बगैर टिकट सवारी करते हैं। जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं गाड़ियों के चार्ट में ट्रेनों के औकात देखने लगा और एक ट्रेन ठीक 9 बजे यहाँ पहुँचने वाली थी, जो ट्रेन तारागढ़ होती हुई जाती थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया। प्लेटफार्म पर चाय के स्टॉल लगे हुए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन फिर ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। नाश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खुदा खुदा करके 9 बजे और फिर स्टेशन ट्रेन के आने की घंटी बजी। बिल्कुल मुसाफिर ना थे। मेरे अलावा इक्का दुक्का लोग टहल रहे थे। ट्रेन आ गई और मैं 3rd क्लास के एक डब्बे में सवार हो गया।
काफ़ी मुसाफिर भरे हुए थे, लेकिन एक कोना खाली मिल ही गया और मैं वहीं बैठ गया। कभी मैं भी एक बाइज़्ज़त और बावकार आदमी था और मुझे ऐसे जुर्म से सख्त नफ़रत थी जिससे इंसान ख्वाह मख्वाह ज़लील हो। लेकिन अब तो मेरी कोई हैसियत, कोई इज़्ज़त नहीं थी। जिसका दिल चाहे जूते मार सकता था। मैं तकदीर पर चाकर होकर बैठा रहा। ट्रेन चंद मिनट रुकी और फिर विसल देकर आगे बढ़ गई। कई घंटे गुजर गए, कई स्टेशन आए और गुजर गए। मुसाफिर चढ़ते और उतरते रहे और मैं सहमा सहमा बैठा रहा, लेकिन किसी ने मुझसे तर्ज ना किया। अब मेरे जाने पहचाने मनाज़र शुरू हो गए। ये मेरा वतन था, मेरा देश, और मुझे उससे कैसी मोहब्बत थी। मैं उस पर कैसी कैसी कहानियाँ लिखता था, लेकिन ये सब कुछ अब मुझसे किस कदर अजनबी था। मैं अपने वतन का मुजरम था। मैं अपने वतन के इंसानों से खौफज़दा था। मेरी आंखों में नमी आ गई और मेरा दिल धक से हो गया। दरवाजे से टिकट चेकर अंदर दाखिल हुआ। मोटा जिस्म और सख्त चेहरे वाला टिकट चेकर। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसको देखकर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। मुसाफिर टिकट देते रहे और वो उन्हें चेक करता हुआ मेरे करीब आता रहा। मेरी आंखें बंद थी और मैं गहरी गहरी सांस ले रहा था। टिकट चेकर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं मुंतज़िर था कि अब उसका हाथ मेरे गिरेबान पर पड़ेगा, वो मुझे उठाकर खड़ा कर देगा और फिर कंपार्टमेंट में बैठे लोग मेरी बेइज्जती का तमाशा देखेंगे और फिर किसी स्टेशन पर मुझे रेल से उतारकर हवालात में पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद बगैर टिकट सफ़र के जुर्म में पकड़े जाने वाले के बारे में मालूम होगा कि वो तो एक ख़तरनाक कातिल और जेल से मफरूर इंसान है। अखबारात सुर्खियाँ लगाएंगे और एक ख़तरनाक कातिल शारक बड़े ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार हो गया। लेकिन ना जाने क्या हुआ, टिकट चेकर ने मेरा गिरबान ना पकड़ा, ना ही दोबारा उसने मुझसे टिकट का मुतालबा किया। मैंने सहमी अंदाज में आंखें खोल कर देखा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने तो मुझसे टिकट मांगा ही नहीं, बल्कि मेरे बराबर बैठे हुए मुसाफिर का टिकट देकर चला गया। इलाही, क्या माजरा है! उसने मेरे ऊपर ये करम किया और मेरा ज़हन उलझन में फंसा दिया। सफ़र तय होता रहा और जब भी कोई टीटी कंपार्टमेंट में आता, मैं लर्ज़ उठता कि मुमकिन है कि ये पहले टीटी की तरह मुझे नज़रअंदाज ना करे। लेकिन रानीपुर से तारागढ़ तक का सफ़र बखूबी तय हो गया और मुझे भूख के अलावा कोई तकलीफ़ ना हुई। तारागढ़ के प्लेटफार्म पर मैं रेल से उतर गया। अब आखिरी मरहला और बाकी था, यानी रेलवे से फाटक से निकलना। लेकिन इस मरहले पर भी मुझे कोई दिक्कत ना हुई। गेट पर खड़ा टिकट कलेक्टर मुसाफिरों से टिकट वसूल करता रहा और जब मेरी बारी आई तो वो मेरे पीछे चंद कदम दूर आने वाले मुसाफिर को देखने लगा। मैं इत्मीनान से उसके करीब से गुजरा चला गया और मैं उन पे दर पे पेश आने वाले वाक़यात पर सख्त हैरान था। और फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, मेरी शख्सियत में कोई तब्दीली तो नहीं हुई। और मैंने वाक़यात का तज्ज़िया वहाँ से शुरू किया जब बशीर मुझे रानीपुर छोड़ गया था और मैंने लोगों से स्टेशन का रास्ता पूछा, लेकिन वो बेइतनाई से मेरे करीब से गुजर कर चले गए। मैंने स्टेशन पर क्लर्क से गाड़ियों के बारे में पूछा तो उसने भी कोई जवाब ना दिया। और फिर रेल में टिकट चेकरों का रवैया और जहाँ स्टेशन पर ओह कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझे देख ही ना पा रहे हों, ये बात करीने कयास थी। मैं जिस दौर से गुजर रहा था और उसमें कोई बात नामुमकिन नहीं रही थी। नेकी और बदी बरसरे बेकार थी। नेकी की कुव्वतें मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी और बदी मेरे ख़िलाफ़ नबर्दे आज़मा थी। अगर ऐसा ना होता, अगर मैं तन्हा होता तो पत्थरों के इस तिलस्म से कभी ना निकल सकता। लेकिन मैं ना सिर्फ वहाँ से निकला था, बल्कि ऐसी जगह निकला था जहाँ से मेरी मंजिल ज़्यादा दूर ना थी, वरना ना जाने मुझे कहाँ कहाँ का तकलीफ़दा सफ़र करना होता। और अब जब मेरे वतन पर चप्पे चप्पे पर मेरे दुश्मन बिखरे हुए थे, हर आन मुझे ख़तरा था कि मैं किसी लम्हे गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा। मकामी पुलिस को मेरी तलाश थी और मेरी गिरफ़्तारी पर इनाम मुकर्रर था। मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कुव्वतों ने मुझे दुनिया की निगाहों से उज्जल करके महफूज कर दिया था। इस तसव्वुर से मेरा दिल कई गुना बढ़ गया और मैंने अपने इस ख्याल को आज़माने की कोशिश की। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं स्टेशन से कुछ दूर एक चाय खाने की तरफ बढ़ गया और फिर चाय खाने में दाखिल होकर एक मेज़ पर बैठ गया। मैंने बेरे को आवाज़ दी, लेकिन बेरा मेरी तरफ मतवज्जा ना हुआ। ना ही कुर्बो जवार बैठे लोगों ने मेरी तरफ देखा। और फिर मेरे इस ख्याल में कोई शक व शुबा ना रहा कि लोग मुझे नहीं देख सकते। फिर अब मैं क्या करूं? खाने पीने का क्या बंदोबस्त करूं? भूख लग रही थी। खाना मेरी दस्तरस से बाहर नहीं था। अब तो मुझे जहां से चाहा हाथ बढ़ाकर कुछ भी उठा सकता था, किसी को इल्म ना होता। लेकिन मेरे दिल ने यह गवारा ना किया।
भूख बर्दाश्त करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल न था। अब तो मैं ऐसी तकलीफ़ें उठाने का आदी हो गया था। चुनाचा मैं खामोशी से चाय खाने से उठाया। बहरहाल अब मेरे दिल से पुलिस का खौफ दूर हो गया था। अब तो सिर्फ एक ही काम रह गया था, वरना पहले पुलिस से पुलिस से खौफ दामनगीर था। चाय खाने से निकल कर मैं चल पड़ा। ये मेरा वतन था, जहाँ मैंने जन्म लिया था, जिसके गली कोचों में खेल कर मैं बड़ा हुआ था, जहाँ के स्कूलों में मैंने तालीम हासिल की थी। एक एक जगह मानूस थी, एक एक जगह से मुझे मोहब्बत महसूस हो रही थी। अगर किस्मत खेल ना बिगाड़ देती तो अब यहीं के किसी और अवदवारे में कोई बड़ा अफसर लगा होता। लेकिन अब मैं यहाँ चोरों की तरह दाखिल हुआ था और चोरों ही की तरह सड़कों पर घूम रहा था। अब किसी ऐसे शख्स के दिल की कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं जो अपने ही वतन में इस कदर अजनबी हो। मुझे कुछ शक्लों को पहचान रहा था, लेकिन उन्हें मुखातब नहीं कर सकता था। कैसी अजीब बदनसीबी, कैसी अजीब बेबसी थी, लेकिन ये बेबसी अब मेरा मुकद्दर थी। मेरे लिए किसी को मुखातब करना ना करना बराबर था। अव्वल तो मेरी आवाज़ ही कोई ना सुनता, दूसरी बात यह कि अगर वो आवाज़ सुन सकते तो मुझे देख भी सकते। तब भी या तो मुझे गिरफ्तार कराने के सुनहरे ख्वाब देखते या फिर मुझसे नफ़रत का इजहार करते, क्योंकि हमारा ख़ानदान अब यहाँ का बदनाम तरीन ख़ानदान था। बासिदियों ने हमारे लिए जो गड्ढे खोदे थे उनको पुर करना नामुमकिन था। मैं एक एक चीज़ को हसरत से देखता आगे बढ़ता रहा। गो मेरा मिशन दूसरा था। ऐसी शक्ल में मुझे ना तो उन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, ना उनकी परवाह करनी चाहिए थी। वहाँ तारागढ़ के ढलवानों से परे उस वीरान मस्जिद में मकड़ी के जालों के अंदर ख्वाबीदा हुस्न मेरा मुंतज़िर है। मुझे जल्द अज जल्द उसके पास पहुँच जाना चाहिए। और इस तसव्वुर ने मेरी तमाम महरूमियों को दूर कर दिया। मैं अपने वालिदैन को खो चुका था, अपने ख़ानदानी वक़ार खो बैठा था। ये चीज़ें मैं वापस ना ला सकता था। जो होना था वो तो अब हो ही चुका था, लेकिन इन तमाम चीज़ों के सिले में मुझे जो कुछ मिलने वाला था वो सब का नामुल बदल तो नहीं था, क्योंकि माँ की ममता, बाप की शफकत, बहन का प्यार, ख़ानदान की इज़्ज़त, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो अनमोल ना हो। लेकिन अब ये सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। उसके बदले में मुझे ना जाने क्या मिलने वाला था। मुमकिन है कि वो मेरे दुखों का मदावा बन जाए। मैंने ज़हन से तमाम ख्यालात झटक दिए और एक तवील चक्कर काट कर अपने मकान के करीब पहुंच गया। हाँ, ये वही खूबसूरत इलाका था जहां मैं रहता था। यही उसी जगह कभी मेरा मकान था, लेकिन मुश्तिल पड़ोसियों ने मेरे मकान की बुनियादें तक खुदवा कर फेंकवा दी थी और अब वहाँ मेरे मकान का कोई वजूद नहीं था। लेकिन तारागढ़ के ढलवान उसी तरह थे और उनके अख्ताम पर लीचियों के दरख्त यूं ही लहरा रहे थे। उस पूरे इलाके का हुस्न उसी तरह बरकरार था और मैं सुस्त कदमों से अपने घर की खुदी हुई बुनियादों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। घर की खुदी हुई बुनियादों को देखकर और अपने घर याद करके एक बार फिर मेरे दिल में हौक सी उठी थी और मेरे कदम सुस्त पड़ गए थे। फिर मैंने आंखों की कोरवों से आंसुओं की नमी खुश्क करके और आगे बढ़ गया और अब मेरे कदम ढलानों की तरफ थे। और जो ही मैंने ढलानों पर कदम रखा, मेरे कानों में खौफनाक आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ें मुझे रोक रही थी। कोई कह रहा था, खबरदार, एक कदम आगे बढ़ाया तो क़यामत आ जाएगी, खबरदार, पीछे हट जा। और मैंने सहमी हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। आवाज़ों का मखरज मुझे मालूम ना हो सका। मैं ढलान पर उतर गया। मैं जानता था कि बासिदों की शिकस्त नज़दीक आ पहुंची है। इस वक्त वो जो कुछ भी करे कम है। चुनाचे मैंने उन आवाज़ों पर तवज्जो ना दी और कई कदम ढलान पर नीचे उतर गया और अचानक मैंने ज़मीन हिलती महसूस की। वहाँ ज़मीन हिल रही थी, ज़लज़ला आ गया था। फ़िज़ा में एक खौफनाक गूंज उभर रही थी और ये मेरा वहम नहीं था, क्योंकि चंद ही लम्हात के बाद मैंने ढलान के ऊपर आबादी में चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। लोग घरों से निकल रहे थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब ज़लज़ला आ गया चीख रहे थे और अब ज़मीन बाकायदा हिल रही थी। मेरे कदम डगमगा रहे थे और मेरे सामने दरख्त ज़मीन से उखड़ कर गिर रहे थे। आबादी की ऊंची इमारतें गिरने लगीं और शोर बढ़ता जा रहा था। मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद अपने पाँव ज़मीन पर ना जमा पा रहा था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं किसी झूले में झूला झूल रहा हूँ। और फिर मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नीचे गिर पड़ा। मैं ढलान पर लड़क रहा था बुरी तरह और ज़मीन हिल रही थी। ये ज़लज़ला तारागढ़ की तारीखी ज़लज़ले में शुमार होता है। मुमकिन है कि लोग अब भी मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि ये तबाही सिर्फ मेरी वजह से फैली थी।
ये अफरीती कुव्वतों का करिश्मा था। मेरे करीब कई जगह से ज़मीन फट गई। मुमकिन था कि मैं किसी दरार में जा पड़ता, लेकिन उस वक़्त मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं लड़क रहा था और मेरे जिस्म पे पत्थरों और कांटों के चुभने से खराशें पड़ रही थी। बिल आखिर मैं ढलान के इख्तिताम पर रुक गया। लीचियों और खुबानियों का बाग उजड़ गया था। तमाम दरख्त जड़ों से उखड़कर एक दूसरे से उलझे पड़े थे। एक दरख्त के नीचे मैंने तुलसी की लाश देखी। तुलसी मेरा बूढ़ा दोस्त, जिसने मुझे मना किया था कि आज मैं जंगलों में ना जाऊं। मंगल का दिन है और बुरी रूहें आज़ाद होती हैं। मैंने तुलसी की कमर पर पड़े हुए दरख्त को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ज़लज़ला रुक चुका था, लेकिन ढलान के ऊपर खौफनाक शोर अब भी सुनाई दे रहा था। ना जाने कितनी ज़बरदस्त इंसानी ज़िंदगी का नुकसान हुआ था। मैंने दोनों उंगलियों से कान बंद कर लिए। ये शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उस शोर से मेरे कान फटे जा रहे थे। मैं तुलसी की लाश के नज़दीक खड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे ज़लज़ले से पहले वो हैबतनाक आवाज़ें सुनाई ना देती जो मुझे ढलान से उतरने से रोक रही थी, तो मैं उस ज़लज़ले को इत्तफाक़िया समझता। लेकिन अब इन इंसानी ज़िंदगियों की तबाही का ज़िम्मेदार मैं खुद को समझ रहा था। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। बासदियो अपनी आखिरी हरकत से बाज नहीं आया था, लेकिन बेसूद, सब कुछ बेसूद। मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकता था। कुदरत खुद ही उस मौजी के लिए कोई बंदोबस्त करेगी, मैंने सोचा, और फिर मैं तुलसी की लाश के पास से हट गया। लीचियों के उजड़े हुए बाग को देखकर मुझे बहुत गम हुआ था। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए और अचानक मुझे गहरी गहरी सांसों की आवाज़ें सुनाई दी, बेशुमार आवाज़ें। उनमें कुछ आवाज़ें स्टीम इंजनों की आवाज़ों से मुशाबा थी और कुछ आवाज़ों से सीटियाँ सी बुलंद हो रही थी। मैंने तुलसी की लाश पर पड़े हुए मोटे दरख्त को बल खाकर तुलसी की लाश से हटते हुए देखा। वो किसी नरम चीज़ की तरह मुड़ रहा था। तुलसी की लाश से हटकर वो पलटा और मेरी निगाहें उसके सर पर पड़ गई और उसका सर फैला हुआ था। उसमें दो सुर्ख सुर्ख रंग आंखें जगमगा रही थी, हैबतनाक आंखें। दहशत से मेरी चीख निकल गई और मैं उछल कर वहाँ से भागा, लेकिन चंद कदम दौड़ते ही मेरे कदम रुक गए। लीचियों के दूसरे दरख्त भी करवटें बदल रहे थे और वो सब एक दूसरे पर चढ़ते जा रहे थे। सब के जिस्म लचकदार हो गए थे और उनके सिरे फैलकर अजदहों की शक्ल इख्तियार कर गए थे, जिनकी खौफनाक आंखें मुझे घूर रही थी और मोटी मोटी ज़बानें मुझे हड़प करने के लिए बार बार निकल रही थीं। उनके जिस्म फूल चिपक रहे थे और मेरे लिए यहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं थी। मेरा कलेजा खौफ और दहशत से फटने लगा और मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज़ ना निकल सकी। फिर एक अजदहा फन फैलाए मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और मैं उछल कर भागा। अब मुझे उन अजदहों के जिस्मों पर से गुजरना था, उसके अलावा और कोई तरकीब नहीं थी। मेरे वदनी कदम उनके लजलजे जिस्म पर पड़ते और वो बल खा रहे थे। कई बार मैं उनके जिस्मों पर गिरा और मैंने कई अजदों को खुद पर छाने की कोशिश करते देखा, लेकिन मैं फिर उठकर भागा और मैं हर कीमत पर यहाँ से निकल जाना चाहता था। बिल आखिर में उनके दरमियान से निकल गया, लेकिन दूर दूर तक स्याह नाग फुंकार रहे थे, छोटे बड़े काले और रंगीन सांप। कई सांप तेज़ी से मेरी तरफ लपके और मैंने रास्ता बदल दिया। मैं जिस रास्ते पर जा रहा था, सांप मेरा ताक़ब कर रहे थे, लेकिन कब तक? ये मुसीबत भी मेरे लिए कुछ न रही और फिर मैं लीचियों के बाग से काफ़ी दूर पहाड़ी मैदान में निकल आया। भाग दौड़ से मेरे सांस बुरी तरह फूल गया और मैं एक बड़े पत्थर से पीठ लगाकर गधे की तरह हाँफने लगा। मेरा दिल उछल कर निकल पड़ना चाहता था। आंखों के सामने तारीकी फैल गई थी, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा और जब थोड़ी देर के बाद मेरी कैफियत दुरुस्त हुई तो मैंने खौफज़दा नज़रों से चारों तरफ देखा। मैं देखना चाहता था कि अब शैतान बासदियो और कौन सी आफत मुझ पर नाज़िल करना चाहता है। सांपों और असदों का अब दूर दूर तक पता नहीं था और मेरे चारों तरफ वीरान चट्टानें बिखरी हुई थी। मैं आगे बढ़ गया और यहाँ से मैंने रास्ते का सही तयन कर लिया और आगे बढ़ रहा था। जो मेरे कदम मस्जिद की तरफ उठ रहे थे, मेरे जिस्म में एक नई कुव्वत आती जा रही थी। एक बार फिर मेरे जहन में उस हसीन औरत का तस्वर उभर आया जो मकड़ी के जाले के अंदर सो रही थी और मेरे दिल में उसे देखने और उसे छूने का शौक़ करवटें बदल रहा था। और अब मैं उस मनहूस जगह था जहाँ बासदियो एक माजूर बूढ़े की शक्ल में पहली बार मुझे मिला था। हाँ, यही वो जगह थी जहाँ से मेरी बदनसीबी का दौर शुरू हुआ था। मैंने हकारत से उस जगह को देखा और उस पर थूक दिया। मुझे उस जगह से सख्त नफरत महसूस हुई और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन अभी थोड़ा ही दूर चला हूँगा कि अचानक मेरे कान
एक अजीब किस्म की आवाज़ से गूंज उठे। ये घोड़ों के टापों की सी आवाज़ थी। ऐसे लगता था जैसे बेशुमार घोड़े दौड़ रहे हों। टापों की आवाज़ों में घोड़ों के हिनहनादे की आवाज़ें भी शामिल थी और ये आवाज़ें करीब आती महसूस हुई। वहम, मैंने सोचा, लेकिन ये वहम नहीं, हकीकत थी। चंद लम्हात के बाद मैंने एक टिड्डी दिल लश्कर देखा। ताहद्दे निगाह घोड़े ही घोड़े फैले हुए थे और आहन पोश उन घोड़ों पर सवार थे। सबसे आगे 3 आदमी थे और एक के हाथ में एक परचम लहरा रहा था, नीले रंग का परचम, जिस पर स्याह रंग के किसी इफरत की शक्ल बनी हुई थी। बाकी दो आदमी खाली हाथ थे। ये लश्कर एक नींदारे की शक्ल में फैला हुआ था। ऐसे लगता था कि जैसे वो मुझे चारों तरफ से घेर रहे हों। मैं रुक गया और बुत बना उन सवारों को देखने लगा जो अब काफ़ी करीब आ गए थे। सामने वाले 2 सवारों के करीब आते ही मैंने उनमें से एक को पहचान लिया। ये राजा बासिदियो था। उस वक्त वो बिल्कुल जवान नजर आ रहा था। माथे पर चंदन तिलक लगाए हुए, बड़ी बड़ी स्याह मूंछों और खौफनाक आंखों से मुझे घूर रहा था।